मैं चाहूंगा वरुण बॉर्डर 2 रिलीज होने को है। ऐसे में दर्शक इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं कृष्णा जी को और मेकर्स भी उनकी एक्साइटमेंट को कम नहीं होने दे रहे। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट शहीद जवानों के परिवारों को दिखाया गया। सुशील जी से तो सुना। इसे देखने के बाद शहीदों के घर वाले इमोशनल हो गए। यहाँ सभी को वरुण धवन और आहान शेट्टी ने सम्मानित किया। कृष्णा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनको जो वीर नारी जो हमारी बच जाती हैं और हमारे सोल्जर्स चले जाते हैं, सलाम है उन वीर नारीज को, उन माताओं को, उन सबको प्रणाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज अपनी जगह लें। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमास जी की फैमिली को पे आए। मैं चाहूंगा आहान आप प्लीज फेलिसिटेट करें। ये इज अ फन फैक्ट अगर आपको ट्रिविया पसंद है। Since Varun talked about the animals, there is a fact that a donkey had won a Veer Chakra, and the donkey's name was Pedongi, and we can look into that history. My father also won a Veer Chakra, her husband, in the same war on the eastern side. But a very good fact in 71 war, but a very good fact that you brought out about the animals, and look into the donkey Pedongi. I'll definitely read that. जोरदार तालियां जरीन जी और रुस्तम जी के लिए। जरीन जी आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा अभी। Thank you for inviting us here first. And I really appreciate the celebrity fraternity taking so much interest in bringing out these movies and creating an awareness for the younger generation. Really motivating, and I think there are many untold stories which still have to be looked up to, and I'm sure your father will look into it and bring out more. Yeah? As regards, first of all, like he said, I'm Mrs. Zareen Jamasji, proud spouse of Squadron Leader Parvez Jamasji, VRC, and he was in the 1971 operations. Though the war was in December, he left in October, and I only saw him on 10th of January 1972. After that, what happened? I don't know. Of course, his memoirs are there, but that's a different story. I really would like to appreciate that. Please do bring out these movies, motivate everybody. And this trailer we saw was very emotional, nostalgic, and motivating. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming. रुस्तम जी आपकी क्या यादें हैं, आप अगर शेयर करना चाहें परवेज साहब के बारे में प्लीज। So, where's the camera? Okay. My dad was in the Air Force, but he got the Veer Chakra from the Army. So there's a bit of a story there. In July of 1971, he was deputed to something called the ARC, or the Aviation Research Center, which is a covert arm of the air. And through ARC, he was deputed to something called the Special Frontier Force. And this was on the east side. The war was on the east side, you're on the Bangladesh side, the East Pakistan. And my dad's first ingress into East Pakistan was on 30th October 1971. They were flying the troops of Special Frontier Force. This had the recce in the hills, northeast hills. And he was shot on the 11th of December or 9th of December, I've mixed up now, where the anti-aircraft shrapnel went through his calf. And he flew the next day because the ARC operations had to continue. And we are a proud family, and really good of you all guys to bring this history, because in the rat race, nobody has the time for this. And as family or a Fauji family, it is very important that we have the support of the civilians during the war. Because when, as Veer Nari herself, Mrs. Dahiya said,
that the families have to suffer, and there are Veer Naris who are waiting and not knowing what is happening. At that time, when the nation falters, when each civilian says, "Nahi, hame nahi chahiye," or there is no war, or that movement gathers, what would be going through the Veer Nari's mind at that time, that my husband is fighting and the nation is not supporting us? And the nation is segmented into two parts. One wants a war sitting in Bombay or Madras for the sake of, hum ladenge. But when the bomb falls on his car, he doesn't want the war. So, we will be at war. And a bomb will hit your car. And at that time, if you stand resolute, your soldiers are stronger. That's all. वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को प्लीज आप मंच बजनी चाहिए। और मैं चाहूंगा निधि प्लीज सम्मानित करें वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को। जोरदार तालियों से इस सम्मान को। भारती जी, यस, पहले तस्वीर लेंगे हम और फिर भारती जी से बात करेंगे। भारती जी, अभी आपने देखा द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर जो हमारे शहीदों के लिए है, हमारे सोल्जर्स के लिए है, कैसा लगा आपको, प्लीज बताएं। सर, मैंने जब उसमें देखा तो मेरी रियल लाइफ मुझे याद आ गई, क्योंकि उसमें जो पार्थ शहीद होके घर पे आए वैसे ही मेरे हस्बैंड का आया था, क्योंकि वो 4 महीने से उधर ही गए थे, 2 दिन के बाद आने वाले थे। उधर ही बर्फ में वो उसका ये हो गया, और मेरी बेटी तब 3 ही साल की थी, तब दिवाली था। इस वजह से मुझे बहुत रोना आया वो देख के। मुझे लगा कि मेरी रियल लाइफ दिखा रही है। और ये ट्रिब्यूट इसीलिए हमने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भारती जी कि आप आए। जोरदार तालियां प्लीज, ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, प्लीज आप मंच पर आएं। और मैं चाहूंगा मनोज सर प्लीज सम्मान करें सुषमा जी का। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, जोरदार तालियों से सम्मान। सुषमा जी, आपने भी आज का ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, प्लीज 2 लाइनें अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा लगा वो फिल्म, बस। चलिए, ये स्माइल हमारे लिए बहुत है। जोरदार तालियां। वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार, वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार के लिए जोरदार तालियां। फेलिसिटेट करें रेखा जी का। रेखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो ट्रिब्यूट ट्रेलर है हमारा देखा आज। वो फिल्म अच्छी लगी। वो जो शहीद की पेटी आ गई ना, वो मेरे हस्बैंड की याद आ गई है। मेरे भी कारगिल में शहीद हुए हैं। वो अच्छा फिल्म बनाए है, ये लोगों ने देखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीर नारी जयश्री संदीप पाटिल, मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा सर प्लीज फेलिसिटेट करें जयश्री संदीप पाटिल जी का। जयश्री जी, ये जो ट्रिब्यूट ट्रेलर हमने बनाया है, प्लीज उसके बारे में 2 शब्द बोलें। सर, आर्मी वालों के लिए जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि रियल मतलब जितना देखा वो हमारे ऊपर ही है। मतलब हम बोल नहीं सकते, बोलते बोलते ही रोना आ जाता है। इसकी वजह से मतलब जो था वो अच्छा ही फिल्म में जो चालू होने वाला है, शुरुआत करने वाले, आपको धन्यवाद दिल से। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मार्टियर्स एंड हमारे सोल्जर्स की फैमिली के लिए जोरदार तालियां एक बार हम जानना चाहेंगे। कल्पना जी का स्वागत। वरुण, कल्पना जी, आपने भी ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, मैं चाहूंगा प्लीज अपनी जो यादें हैं वो शेयर मैं करें। कल्पना देवीदास पाटिल,
सर हम लोग तो छोटे छोटे गांव से है। छोटे गांव में ही आर्मी वालों के लड़के आर्मी में चले जाते हैं। दीपचंद जी का क्या कहना, सर ने हमें यहाँ तक लाया है। मूवी का तो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मूवी तो हमारे ऊपर ही रियल बनाई गई है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रियल हीरो थे वो, उनके ऊपर क्या बोले। मेरा बेटा ना सर 6 महीने का था जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए। 2003 में हुआ है हमारा। जब गोली लगी तो फरवरी में लगी थी मेरे हस्बैंड को गोली, और जुलाई में उनका डेड बॉडी लाया गया था। 6 महीने तक हमने इंतजार किया, तब कोई फोन कॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अक्सर यादें याद आ जाती हैं।